اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، دوسرے اپنے وطن سے دوری پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور واقع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج، دوسری کسرا کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، میرے عزیز رفیقو، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی، اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی۔ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ کئی آوازیں سنائی دیں، بے شک بے شک۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور سے، جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، اے برہنہ جنگجو، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ زرار نے کہا، ولید کے بیٹے، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر جاں فضا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ ارد شیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج السفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگی۔ ہرقل نے بڑے جوش سے کہا، عزازیر زندہ ہے، کلوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہاں سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، شہنشاہ معظم، وہ دونوں زندہ نہیں۔ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم مجھ سے جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ قاصد نے کہا، سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کے شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا، اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا، سالار توما دمشق کے اندر ہیں اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر واز کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا ایک سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر 634 عیسوی 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا۔ دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے۔ مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी किले पर किसी भी किस्म का हल्ला नहीं बोला था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखभाल के लिए हर तरफ जासूस भेज रखे थे। महासरे के 11वें रोज एक जासूस इस हालत में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया कि उसका घोड़ा पसीने में नहाया हुआ था और जब घोड़ा रुका तो कांप रहा था। सवार की अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, उससे अच्छी तरह बोला भी न जाता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले तो उसे पानी पिलाया, फिर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। जासूस ने कहा, रूमियों की एक फौज आ रही है, तादाद 10,000 से ज्यादा होगी, कम नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुमने उसे कहाँ देखा है? जासूस ने कहा, हमसे आगे निकल आई है और एक जगह का नाम लेकर कहा, हमारा एक दस्ता वहाँ मौजूद है। रूमी फौज कल किसी भी वक्त वहाँ तक पहुँच जाएगी। हमारे दस्ते की नफरी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं कहीं एक सानिये के लिए भी नहीं रुका। हमारा दस्ता मारा जाएगा और रूमी दमिश्क तक आ जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जासूस को रुखसत कर दिया। उनके लिए ये खबर हैरान कुन भी नहीं थी, परेशान कुन भी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि हरकल अंताकिया में है और वहाँ वो आराम और सुकून से नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो दमिश्क को बचाने के इंतजामात कर रहा है। ये रूमी फौज जिसकी इत्तला एक जासूस लाया था, अंताकिया से शहनशाह हरकल ने अपनी दमिश्क वाली फौज के लिए कुमक के तौर पर भेजी थी। मौरखों ने उसकी तादाद 12,000 लिखी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी मौके पर कि रूमियों की कुमक आएगी, दमिश्क की तरफ आने वाले रास्तों पर पहले ही से थोड़ी थोड़ी नफरी का एक एक दस्ता भेज दिया था। उनके सुपुर्द ये काम था कि कुमक को रोके रखें, मगर ये जो फौज आ रही थी उसकी नफरी बहुत ज्यादा थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि दुश्मन की ज्यादा नफरी आ रही है और उसे रोकने के लिए अपनी नफरी बहुत थोड़ी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रूमियों की इस कुमक को रोकना है और अपनी नफरी जो उसके रास्ते में मौजूद है उसे जानी नुकसान से बचाना है। हमें महासरे को जरा कमजोर करना पड़ेगा। सालार शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस कमी को हम अपने जज्बे से पूरा कर लेंगे। इब्न वलीद, तू जितनी नफरी काफी समझता है यहाँ से निकाल के भेज दे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, 5,000 सवार काफी होंगे। रूमियों की नफरी 10,000 से ज्यादा है। ज़र्रार बिन अल अज़वर ने कहा, बहुत है और मुझे यकीन है इब्न वलीद तू हमें मायूस नहीं करेगा। इन 5,000 सवारों का सालार मैं हूँगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तेरी ख्वाहिश को मैं रद्द नहीं करूंगा इब्न अल अज़वर, लेकिन एहतियात करना कि जोश में आकर दुश्मन की सफों में न घुस जाना। अगर ऐसा जरूरी हो जाए तो तब पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये भी सुन ले इब्न अल अज़वर, अगर तूने देखा कि तू दुश्मन को संभाल नहीं सकेगा तो फौरन कुमक मांग लेना, मैं भेज दूंगा। वहाँ पहले से जो अपना दस्ता मौजूद है उसे भी अपनी कमान में ले लेना। ये सारी नफरी तेरे मातहत होगी, अपना नायब खुद ही चुन ले। ज़र्रार ने कहा, राफ़े बिन उमैरा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ले जा इसे और इतनी जल्दी वहाँ पहुँच जैसे तू उड़ता हुआ गया हो। ज़र्रार बिन अल अज़वर को दर्राए उक़ाब के करीब पहाड़ी इलाके में 5,000 सवारों के साथ पहुँचना था। वो जगह दमिश्क से कमोबेश 20 मील दूर थी। ज़र्रार तो जैसे उड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ जो नफरी मौजूद थी उसे भी अपनी कमान में ले लिया। ये इलाका पहाड़ी होने की वजह से घात के लिए मौजूद था। रूमी फौज अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। ज़र्रार ने बड़ी तेजी से अपनी तमाम नफरी को घात में छुपा दिया। उसके साथ ही उस रोज का सूरज गुरूब हो गया। ज़र्रार ने संतरी इस हिदायत के साथ मुकर्रर किए कि वो टेकरियों और चट्टानों के ऊपर चले जाएं, बाहर न जाएं। पूरी एहतियात की जा रही थी कि दुश्मन को घात का पता न लगे। रात गुजर गई, सुबह तुलू हुई और उससे थोड़ी ही देर के बाद दुश्मन की फौज आ गई और ये सही मानों में फौज थी। नफरी ज्यादा, तंजीम निहायत अच्छी। देखा गया कि उस फौज के साथ बेशुमार घोड़ा गाड़ियां थीं जो सामान से लदी हुई थी और ऊंटों की तादाद भी बेहिसाब थी जिन पर बोरियां लदी हुई थी। ये बाद में पता चला था कि ये सामान खुर्दनोश था जो दमिश्क जा रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दमिश्क की उस सूरत हाल से बेखबर थे। रूमियों ने दमिश्क का दिफा तो बड़ा अच्छा किया था, लेकिन शहर में रसद और खुराक की इतनी कमी थी कि 10 दिनों के मुहासरे में ही शहरी हर चीज की किल्लत महसूस करने लगे। हरकल को इत्तला मिल चुकी थी। उसने कुमक भेजी और उसके साथ खुराक का जखीरा भी भेज दिया। ज़र्रार बिन अल अज़वर को बताया गया कि रूमी फौज के साथ मालो असबाब बेहिसाब आ रहा है, तो ज़र्रार ने जोश में आकर हस्बे मामूल ज़र्रा खोद और कमीज उतार फेंकी और नीम बरहना होकर उन्होंने ऐलान किया कि बहुत मोटा शिकार आ रहा है। रूमी जब पहाड़ियों में आए तो ज़र्रार की ललकार पर मुजाहिदीन इस्लाम घात से निकलकर रूमियों पर टूट पड़े। तवक्को ये थी कि रूमी अचानक हमले से घबराकर और बौखलाकर भाग उठेंगे, लेकिन उनका रद्द अमल ऐसा बिल्कुल नहीं था।
उन्होंने ये चाल चली कि पीछे हटने लगे और दर्रे उकाब के करीब उस जगह जा रुके जो हमवार मैदान था और ये पहाड़ी की बुलंदी थी। उन्होंने सामान की गाड़ियां पीछे भेज दी और उनके पीछे की फौज आगे आ गई। उनकी तादाद मुसलमानों से दुगनी थी और उनके अंदाज से साफ पता चलता था कि मुसलमानों का ये हमला उनके लिए गैर मुतवक्के न था। वो उसके लिए तैयार थे। उन्होंने कदम जमा लिए। ज़रार बिन अज़वर ने दुश्मन को इस कैफियत में देखा कि उसने न सिर्फ ये कि हमला रोक लिया है बल्कि वो सामने से भी और दाएं बाएं से भी हमला कर रहा है। मुसलमानों का जोश खरोश कुछ कम न था, लेकिन रूमी जिस मुनज़्ज़म अंदाज से लड़ रहे थे उससे यही एक खतरा नजर आने लगा था कि वो मुसलमानों को भगाकर और काट कर आगे निकल जाएंगे। ज़रार को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस हरकत से मना किया था उन्होंने वही हरकत की। पहले तो वो मुनज़्ज़म अंदाज से रूमियों पर हमले करवाते रहे, लेकिन देखा कि रूमी पीछे हटने की बजाय चढ़ते आ रहे हैं तो ज़रार जोश में आ गए और चंद एक मुजाहिदीन को साथ लेकर रूमियों पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी मखसूस जुर्रत और शुजात का मुजाहिरा किया और जो रूमी उनके सामने आया वो कट गिरा और इस तरह वो अंधाधुंध बहुत आगे निकल गए। किसी रूमी ने नारा लगाया, ये है बरहना जंगजू, ये कोई सालार हो सकता था। उसने ललकार कर कहा, घेरे में ले लो, इसे जिंदा पकड़ो। ज़रार नीम बरहना होकर लड़ने और दुश्मन को हर मैदान में हैरान कुन नुकसान पहुंचाने में इतने मशहूर हो गए थे कि अंताकिया तक उनकी शजात के चर्चे पहुंच गए थे। रूमियों ने उस नीम बरहना जंगजू को पहचान लिया। ज़रार के दाएं बाजू में एक तीर लग चुका था। मौरखों ने लिखा है कि ज़रार के जिस्म पर 2 जख्म और भी थे। बहरहाल उनके बाजू में तीर उतरने पर सब मुत्तफिक हैं। ज़रार ने तीर खींचकर बाजू से निकाल फेंका। तीर निकालना बड़ा ही अजियतनाक होता है, वहां से गोश्त बाहर निकल आता है, लेकिन ज़रार बिन अल अज़वर आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो तो जैसे अपने जिस्म और अपनी जान से दस्तबरदार हो गए थे। ये तीर और तलवारें तो जैसे उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी। रूमियों का तीर खाकर उन्होंने तीर यूं निकाल फेंका जैसे एक कांटा निकाल फेंका हो। उनका दायां हाथ तलवार को मजबूती से थामे रहा और रूमी कटते और गिरते रहे। रूमी उन्हें जिंदा पकड़ने का तहैया कर चुके थे। उन्होंने ज़रार के आदमियों को जो उनके साथ आगे निकल गए थे बखेर कर अलग अलग कर दिया और ज़रार को घेरे में ले लिया। इस मौके पर उन्हें 1 या 2 जख्म आए। आखिर कई रूमियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बांध दिया। रूमी बुलंद आवाज से चिल्लाने लगे, मुसलमानों, तुम्हारा सालार हमारा कैदी हो गया है। हमने तुम्हारे नंगे सालार को पकड़ लिया है। हम शहंशाह हरकल को तोहफा देंगे। रूमियों की ललकार बुलंद होती जा रही थी। वो ठीक कहते थे। शहंशाह हरकल के लिए ज़रार से बढ़कर कोई और तोहफा अच्छा नहीं हो सकता था। रूमी उन्हें बांध कर पीछे ले गए। उनके जख्मों से खून बड़ी तेजी से बहा जा रहा था, जिससे ये खतरा पैदा हो गया था कि वो हरकल तक जिंदा नहीं पहुंच सकेंगे। रूमियों ने उनकी मरहम पट्टी कर दी। उस दौर की जंगों में फौजें यूं भी शिकस्त खा जाती थीं कि सिपाह सालार मारा गया, परचम गिर पड़ा और पूरी की पूरी फौज भाग उठी। लेकिन मुसलमानों का मामला उसके बरक्स था। ज़रार जैसा सालार पकड़ा गया तो दुश्मन की ललकार सुनकर कि उसने उनके सालार को पकड़ लिया है, मुसलमानों ने हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया। वो लपकते हुए शोले और कड़कती हुई बिजलियां बन गए। राफे बिन उमैरा ज़रार के नायब सालार थे। उन्होंने गरज कर ऐलान किया कि अब कमान उनके हाथ में है। उन्होंने सामने से रूमियों पर हमले भी करवाए, खुद भी हमलों की क़यादत की और दुश्मन की सफ़ों को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की। लेकिन रूमियों की सफ़ें मिलकर बड़ी मजबूत दीवार बन गई थी। राफे ज़रार को रिहा करवाने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। मुसलमान अपने सालार को दुश्मन से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। दोपहर से जरा बाद का वक्त था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क के इर्द गिर्द घूम फिर कर जायजा ले रहे थे कि दीवार कहीं से तोड़ी जा सकती है या नहीं। 2 सालार उनके साथ थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम दमिश्क हमारा है, रूमियों को कुमक नहीं मिल सकती। ज़रार और राफे उनकी कुमक को भगा चुके होंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चुप हो गए। एक घुड़सवार उनकी तरफ तेज आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कासिद मालूम होता है। घोड़े को एड़ लगाकर उसकी तरफ बढ़े। घुड़सवार ने घोड़ा उनके करीब रोकर कहा, सालारे आला, रूमियों ने ज़रार बिन अल अज़वर को पकड़ लिया है। इब्ने उमैरा ने उनकी जगह ले ली है। उन्होंने इब्ने अल अज़वर को रिहा करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हम नाकाम हो गए। इब्ने उमैरा ने मुझे इस पैगाम के साथ भेजा है कि कुमक के बगैर हम रूमियों को नहीं रोक सकेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जरा बरहम होकर कहा, क्या मैंने उसे मना नहीं किया था कि अपने आप को काबू में रखना? रूमी हमारे इतने कीमती सालार को नहीं ले जा सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सालारों को बुलाया और उन्हें ज़रार की गिरफ्तारी और बैत लहिया में रूमियों के सामने मुसलमानों की कमजोर हालत के मुतालिक बताया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं खुद इब्ने उमैरा की मदद के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन महासरा कमजोर हो जाएगा।
रूमी बाहर आकर तुम पर हमला कर देंगे। हमारी नफरी पहले ही कम होकर रह गई है। अगर मैं नहीं जाता और मैं कुमक नहीं भेजता तो हमारे 5000 सवार मारे जाएंगे और रूमियों की कुमक सीधी यहाँ आकर हल्ला बोल देगी। बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, राफे की मदद को पहुंचना और रूमियों की कुमक को रोकना ज्यादा जरूरी है। इब्ने वलीद, तू समझता है कि तेरा जाना जरूरी है तो अभी चला जा। हमें और दमिश्क के मुहासरे को अल्लाह पर छोड़। रूमियों को बाहर आकर हमला करने दे, वो जिंदा अंदर नहीं जा सकेंगे। दूसरे सालारों ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तायद करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन दिलाया कि उनकी नफरी कम हो भी गई तो भी वो मुहासरे को दरहम बरहम नहीं होने देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मुझे जाना ही है तो मैं फौरन नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे वक्त यहाँ से सवारों को लेकर निकलूंगा जब दुश्मन हमें नहीं देख सकेगा। अबू उबैदा मेरी जगह ले ले। मैं आधी रात के बाद 4000 सवार लेकर निकल जाऊंगा। तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। 4000 सवारों को तैयारी की हालत में अलग कर दो और उन्हें बता दो कि आधी रात के बाद रवाना होना है। बैते लहिया कमोबेश 20 मील दूर था। सूरज गुरूब होने तक वहाँ रूमियों और मुसलमानों में लड़ाई होती रही। राफे बिन उमैरा ने शाम तारीख होने के बाद भी मुजाहिदीन को रूमियों के अकब में पहाड़ियों के दरमियान से गुजार कर भेजा, मगर हर टोली नाकाम वापस आई। राफे ने कई बार कहा, जूं वक्त गुजरता जा रहा है, ज़र्रार बिन अज़वर मौत के करीब होता जा रहा है। अल्लाह करे वो जिंदा हो, अल्लाह उसे जिंदा रखे। हम उसे छुड़ा कर जरूर लाएंगे। रात गुजर गई। सुबह का उजाला भी पूरी तरह नहीं निखरा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु 4000 सवारों के साथ राफे के पास पहुंच गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आधी रात गुजर जाने के बाद दमिश्क से रवाना हुए थे। उन्होंने 4000 सवारों को शाम के बाद खामोशी से मुहासरे से हटाकर पीछे करना शुरू कर दिया था और सवार पीछे जाकर इकट्ठे होते जा रहे थे। ये जगह दमिश्क से जरा दूर थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें साथ लेकर रवाना हुए तो शहर में महसूर रूमियों को खबर तक न हुई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवार दस्ते को देखकर राफे और उनके सवारों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेजी से दुश्मन का और राफे के सवारों का जायजा लिया और दोनों दस्तों को जरूरत के मुताबिक तरतीब में करके हमले का हुक्म दे दिया। हमला अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक घुड़सवार मुसलमानों की सफों से निकला और घोड़ा सरपट दौड़ाता खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से भी आगे निकल गया। उसके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बर्छी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को उस पर गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाकर उसे पुकारा, लेकिन वो रूमियों की अगली सफ तक पहुंच चुका था। जिस्म के लिहाज से वो मोटा ताजा नहीं था। उसके सर पर सब्ज रंग का इमामा था और उसने अपना चेहरा एक कपड़ा बांध कर छुपाया हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। राफे बिन उमैरा ने कहा, ये खालिद है। ऐसी जुर्रत खालिद के सिवा कोई नहीं कर सकता। राफे एक पहलू पर थे जहाँ से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नजर नहीं आते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला रोक लिया और वो राफे के पास गए। राफे उन्हें देखकर हैरान हुए। बोले, इब्ने वलीद, अगर वो तू नहीं जो रूमियों पर अकेला टूट पड़ा है तो वो कौन है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं यही तुझसे पूछने आया हूँ। मैंने इब्ने अल अज़वर को इसी हरकत से रोका था। राफे ने कहा, वो देख इब्ने वलीद, वो जो कोई भी है जरा देख। वो जो कोई भी था मुसलमानों को भी और रूमियों को भी हैरान कर रहा था। जो रूमी उसके सामने आता था वो उसकी बर्छी या तलवार का शिकार हो जाता। ये सवार रुकता नहीं था। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बर्छी होने के बावजूद उसने घोड़े को अपने काबू में रखा हुआ था। एक रूमी को गिराकर वो दूर चला जाता। कोई उसके ताकुब में जाता तो ये सवार यकलख्त घोड़े को रोककर या घुमाकर अपने ताकुब में आने वाले को खत्म कर देता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी दम बखुद हो गए थे। एक बार वो रूमियों को गिराकर उसने घोड़ा दूर से मोड़ा तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब से गुजरा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा, लेकिन सवार न रुका। देखने वालों को सिर्फ उसकी आंखें नजर आईं। आंखों में कुछ और ही चमक थी, बल्कि उन आंखों में दिलकशी सी थी। उसकी तलवार और उसकी बर्छी की अन्नी खून से सुर्ख हो गई। वो एक बार फिर रूमियों की तरफ जा रहा था। राफे ने गजबनाक आवाज में कहा, इब्ने वलीद, तू हमले का हुक्म क्यों नहीं देता? खुदा की कसम, ये जंग उस अकेले सवार की नहीं। मुजाहिदीन उस सवार की हैरतनाक शुजात को देखकर जोश से फट रहे थे और वो भी हमले का मुतालबा कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। अब मुजाहिदीन इस्लाम ने जो हमला किया तो ये ऐसे गजबनाक सैलाब की मानंद था जो बंद तोड़ कर आया था। उस पर एक पुरस्कार सवार ने मुजाहिदीन के लश्कर में कहर भर दिया था। मुजाहिदीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बताई हुई तरतीब से हमला किया, लेकिन वो सवार अपने लश्कर से अलग थलग अपनी तर्ज की लड़ाई लड़ता रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो जैसे पागल हो चुका था या वो खुदकुशी करने के अंदाज से लड़ रहा था। एक बार फिर वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब से गुजरा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चिल्लाए, रुक जा ए जान पर खेलने वाले,
कौन है तू? सवार ने घोड़ा जरा रोका, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। कपड़े के नकाब से उसकी चमकती हुई आंखें नजर आईं और उसने घोड़े को एड़ लगा दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि इस सवार को घेर कर ले आए, वरना ये मारा जाएगा। कहा, देखो ये थक भी गया है। दोनों सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए और उसे जा लिया। एक मुहाफिज ने कहा, क्या तूने सुना नहीं, सालार आला ने तुझे बार बार पुकारा है। सवार मुहाफिजों को चुपचाप देखता रहा। दूसरे मुहाफिज ने कहा, सालार आला तुझसे खफा नहीं, आ और उससे खिराज तहसीन वसूल कर। सवार ने एक बार फिर घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एड़ लगा था, एक मुहाफिज ने अपना घोड़ा उसके आगे कर दिया और दूसरे ने उसकी लगाम पकड़ ली। अजीब बात यह थी कि सवार ने कोई बात न की और निकाब से उसकी आंखें नजर आती रहीं। ये आम सी आंखें नहीं थी। मुहाफिज उसे अपने साथ ले गए और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जा खड़ा किया। उसने बर्छी और तलवार से इतने ज्यादा रूमियों को हलाक किया था कि दोनों हथियार पूरे के पूरे लाल हो गए थे और उनसे खून बह बह कर उस सवार के हाथों तक चला गया था और कपड़ों पर भी छींटे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी आंखों में देखा तो उसने नजरें झुका ली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आंखों से तू नौउम्र लड़का लगता है। तूने अपनी शुजाअत का सिक्का मेरे दिल पर बिठा दिया है। तेरी कदर मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मैं तेरा चेहरा देखूंगा और तू बता कि तू कौन है। सवार ने कहा, तू मेरा अमीर है, मेरा सालार है और तू मेरे लिए गैर मर्द है। मैं तेरे सामने अपना चेहरा कैसे बेनकाब कर दूं जिसे तू मेरी शुजाअत कहता है। ये ऐसा इश्तियाल और गुस्सा है जो मेरे इख्तियार से बाहर है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सवार की बात सुनकर कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। किसकी बेटी है तू? किसकी बहन है तू? उसने जवाब दिया, मैं अल अज़वर की बेटी खौला हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ज़र्रार बिन अल अज़वर की बहन? खौला बिन्त अल अज़वर ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपने भाई को रूमियों की कैद से छुड़ा कर दम लूंगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुश नसीब है अल अज़वर जिसके घर में ज़र्रार जैसे बेटे और खौला जैसी बेटी ने जन्म लिया है। ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं बिन्त अल अज़वर, हमारे साथ रह और देख के हम तेरे भाई को किस तरह रिहा करवाते हैं। इस्लामिक शोर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें